پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میرا نام طارق نصیر ہے اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری نئی تحریر کردہ کتاب ڈائناسورس کی دردناک موت اور ان کی دوبارہ نئی زندگی۔ اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری تحریر کردہ اس نئی کتاب کی 5ویں ویڈیو قسط، جو کہ صفحہ نمبر 41 سے لے کے صفحہ نمبر 50 تک کے صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے اب ہم اپنی اس 5ویں ویڈیو قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس شہاب ثاقب کے دھماکے کے سبب فضا میں اڑ کے جانے والے زمینی ملبے کے وہ بھاری پتھر زمین پر واپس آ کر گرنے لگے، جس سے ان باقی ماندہ بچ جانے والے ایلاموسورس ڈائناسورس کی بھی ہلاکتیں شروع ہو گئیں۔ اس شہاب ثاقب کے دھماکے کے نتیجے میں زمین کی نچلی سطحوں میں موجود ٹیکٹونک پلیٹس میں ارتعاشی سرگرمیوں کے سبب زمین کی تاریخ میں آج تک کا سب سے بڑا اور طویل دورانیے کا 11.1 رختر اسکیل کا زلزلہ آیا تھا، جس سے ان باقی ماندہ بچ جانے والے ڈائناسورس کی بھی ہلاکتیں شروع ہو گئیں۔ اس زلزلے کی شدت انسانی تاریخ میں اب تک کے آئے ہوئے کسی بھی زلزلے کے مقابلے میں 60 گنا زیادہ تھی۔ اس شہاب ثاقب کے دھماکے کے نتیجے میں جو آخری لہر اس مقام پر آئی اسے بلاسٹ پلس ویو کہا جاتا ہے، جو کہ دھماکے کے مقام کے فوکل پوائنٹ یا مرکزی نقطے سے ایک مکمل دائرے کی صورت میں نمودار ہوئی تھی۔ یہ بلاسٹ پلس ویو دھماکے کے مقام کی گرم ترین ہوا پر مشتمل تھی۔ اس بلاسٹ پلس ویو کی رفتار کا اندازہ رفتار کی آواز سے بھی زیادہ تیز تھی۔ جب اس بلاسٹ پلس ویو کا یہ دائرہ ایلاموسورس ڈائناسورس تک پہنچا تو اس لہر نے ان ایلاموسورس ڈائناسورس کے جسم سے ان کی کھال بھی چیر کر اڑا دی، اور اس بلاسٹ پلس ویو کی قوت اتنی زیادہ تھی کہ اس کی ہوا نے ان 40 ٹن وزنی ایلاموسورس ڈائناسورس کو اٹھا کر پٹک دیا، اور کچھ ایلاموسورس ڈائناسورس کو یہ گرم ہوا نامعلوم مقام کی طرف اڑا کر لے گئی۔ شہاب ثاقب کے اس دھماکے کے نتیجے میں اس کریش سائٹ پر 5 منٹ کے اندر اس شہاب ثاقب کے دھماکے کے سبب اس مقام پر وہ تباہی ہوئی کہ اللہ فی الامان۔ شہاب ثاقب کے اس دھماکے کے نتیجے میں ایلاموسورس ڈائناسورس کی طرح اس دھماکے کے مقام کے قریب مقیم دیگر ڈائناسورس کی بھی مزید کئی اقسام اور نسلوں کا بھی اسی طرح سے اسی وقت صفایا ہو گیا۔ اس کے علاوہ شہاب ثاقب کے دھماکے کے مقام پر موجود ایلاموسورس ڈائناسورس کے دیے گئے انڈوں کے کئی گھونسلے بھی تباہ اور برباد ہو گئے تھے، مگر اس اتنی بڑی تباہی کے باوجود بھی اس مقام پر ڈائناسورس کے کچھ انڈے ایسے بھی موجود تھے جو برباد ہونے سے بچ گئے تھے، کیونکہ انہیں نسبتاً ٹھنڈی زمین میں دبایا گیا تھا۔ ان انڈوں میں زندگی کی رمق ابھی باقی تھی اور انہوں نے اپنی افزائش کا عمل برقرار رکھ لیا تھا، لیکن ابھی تباہی کا طوفان تھما نہیں تھا۔ مگر زمین کے مشرقی حصے پر تاحال اس تباہی کے طوفان کی ابھی تک کوئی بھی علامت ظاہر نہیں ہوئی تھی، اور بظاہر زمین کے اس حصے میں تاحال زندگی پرسکون تھی۔ ڈائناسورس کی ایک اور جنت نظیر وادی منگولیا میں واقع تھی، جو کہ زمین کے مشرقی حصے میں ایشیا میں شہاب ثاقب کے دھماکے کے مقام سے تقریباً 8000 میل دور کے فاصلے پر واقع تھی۔ یہاں پر دیو ہیکل سبزیکو ڈائناسورس کورونوسورس، جن کا قد 40 فٹ تک تھا اور وزن تقریباً 4 ٹن تک ہوتا تھا، اس سمیت سینکڑوں اقسام کی نسلوں کے ڈائناسورس ایک ساتھ رہا کرتے تھے، جن کی سورونوتھوئڈ نامی شکاری ڈائناسور سے ہمیشہ چپکلے چلتی رہتی تھی، جو کہ ان کے گھونسلوں میں دیے گئے انڈوں کے شکاری تھے۔ سورونوتھوئڈ ڈائناسورس چھوٹے قد کے انتہائی چالاک اور مکار شکاری ڈائناسورس تھے، اور وہ کریٹیشیس دور کے گیڈر بھی کہلاتے تھے، مگر ان کی ذہانت دیو ہیکل سبزیکو ڈائناسورس کورونوسورس سے کہیں زیادہ تھی۔ اس لیے جب بھی ان ڈائناسورس کے درمیان انڈوں کے مسئلے پر لڑائی ہوتی
तो फतह सोरोनोथोइड के ही हिस्से में आती थी। इस शहाब साकिब के धमाके के 7 मिनट के अंदर उठने वाली आग के बड़े बादल ने अब इंतहाई तेज रफ्तारी से एक मुकम्मल दायरे की शक्ल में मजीद फैलना शुरू कर दिया था और इसके साथ साथ ये मजीद बुलंदी की तरफ भी बढ़ रहा था। इस फायर बॉल की ऊंचाई जमीन से लगभग 100 मील की बुलंदी तक जा पहुंची थी। इस आग के बगोले की 70 बिलियन टन वजनी राख के अंदर मौजूद कई ट्रिलियन माइक्रोस्कोपिक डस्ट और ग्लास के जर्रात जो मुतवातिर बड़ी तेजी के साथ फिजा में बुलंद होकर इसे नाकाबिले बर्दाश्त हद तक गर्म और आलूदा कर रहे थे। इस डस्ट क्लाउड को साइंसदानों ने इजेक्टर क्लाउड का नाम दिया है। ये इजेक्टर क्लाउड मुसलसल और तेजी के साथ फिजा में बुलंद होता रहा और इसका दायरा कुतर भी मजीद वसी होता रहा। ख्याल किया जाता है कि इस डस्ट क्लाउड में शामिल माइक्रोस्कोपिक डस्ट और ग्लास की राख का दर्जा हरारत तकरीबन 15,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था। क्योंकि फिजा में मौजूद ताज़ा हवा और माहौल के इकोसिस्टम ने इस डस्ट क्लाउड को रोकने के लिए इसके सामने सख्त तरीन मज़ाहिमत पेश की थी। इस डस्ट क्लाउड के तेजी से फैलाव और इसके इतने शदीद दर्जा हरारत के सबब इस डस्ट क्लाउड के नीचे जमीन की सतह पर जो चीज भी नजर आ रही थी उसे आग लग रही थी। इस शहाब साकिब के धमाके के मकाम से निकलने वाली इस डस्ट क्लाउड का मंजर रात के इस पहर इस धमाके के मकाम से 3000 मील दूर शुमाल मगरबी बहरुल काहिल के एक मकाम से कैट्ज़ोक्वाटल्स नामी उड़ने वाले डायनासोर्स की एक जोड़ी ने जब एक बुलंदो बाला पहाड़ी मकाम पर मौजूद अपने घोंसले से अपनी जानिब बढ़ते हुए देखा तो उन्होंने अपने घोंसले को छोड़ते हुए एक महफूज मकाम की तरफ उड़ान भर ली। मगर जबकि समुद्री मकाम से करीब तर होने के सबब समुद्री नमी पैदा होने और फिजा में तेज गर्मी की बढ़ती हुई तेज आमेजिश के सबब शुमाल मगरबी बहरुल काहिल के इस मकाम की वादियों में समुद्री धुंध छा जाने के सबब आसमान का नज़ारा देखना मुमकिन नहीं रहा था। इसलिए इन वादियों में मौजूद डायनासोर्स को हालात की संगीनी का पेशगी अंदाज़ा नहीं हो सका था। मगर उसके बावजूद भी इन वादियों में मौजूद डायनासोर्स को एक कुदरती वार्निंग मौसूल हो गई। शहाब साकिब के ज़मीन पर होने वाले इस धमाके के ठीक 16 मिनट और 40 सेकंड्स के बाद इस शहाब साकिब के धमाके के मकाम से तकरीबन 3000 मील दूर शुमाल मगरबी बहरुल काहिल के मकाम पर इन वादियों में मौजूद डायनासोर्स को ये वार्निंग एक तबाहकुन ज़लज़ले की साइस्मिक लहरों की सूरत में मौसूल हुई। क्योंकि शहाब साकिब के इस धमाके के नतीजे में इस धमाके की पूरी कुव्वत की सिर्फ 1% तवानाई जमीन की अंदरूनी मेल्टोर की सतह तक पहुंची थी। मगर फिर भी ये तवानाई बहुत काफी थी कि वो इस पूरे जमीनी सैयारे को एक घंटे की तरह झंझला कर रख दे। इस ज़लज़ले की शिद्दत रिख्टर स्केल पर 11.1 रिकॉर्ड की गई थी, जो कि मौजूदा दौर के किसी भी ताकतवर तरीन ज़लज़ले की शिद्दत से 60 गुना ज़्यादा थी। इन ज़लज़लों के आफ्टर शॉक्स दुनिया के तमाम मुकामात पर कई महीनों तक जारी रहे थे। इस ज़लज़ले ने शुमाल मगरबी बहरुल काहिल के इस मकाम पर ज़बरदस्त तबाही फैला दी थी। कई मकामात पर ज़मीन में सुराख हो गए थे और बहुत से डायनासोर्स इन सुराखज़दा ज़मीनों में धंस कर हलाक हो गए थे। इन वादियों में बड़े और ऊंचे दरख्त गिरने और पहाड़ी चट्टानों की लैंड स्लाइडिंग की जद में आने वाले बहुत से डायनासोर्स हलाक होने लगे थे। इस ज़लज़ले के सबब तमाम डायनासोर्स अपनी जान बचाने के लिए इस वादी से निकलने की कोशिशों में लग गए। इन वादियों में मौजूद क्रेटेशियस दौर के नामवर तरीन डायनासोर सब्ज़ीखोर ट्राइसेराटॉप्स और शिकारी डायनासोर टायरेनोसोरस रेक्स, जो कि एक दूसरे के अज़ली दुश्मन थे, उन्होंने भी जान बचाने के लिए राह फरार इख्तियार करने की कोशिश शुरू कर दी। इस दौरान इजेक्टर क्लाउड भी इस शुमाल मगरबी बहरुल काहिल के मकाम पर क़यामत ढाने के लिए इस शुमाल मगरबी बहरुल काहिल के मकाम पर 10,000 मील फी घंटा की इंतहाई तेज़ रफ्तार से बढ़ रहा था। ये इजेक्टर क्लाउड
जिस मकाम से गुजरता जा रहा था वहां पर एक नाकाबिले बर्दाश्त गर्मी और जमीन पर हर चीज को आग लगाते हुए गुजरता हुआ जा रहा था। इस इजेक्टर क्लाउड ने बादलों के ऊपर से गुजरते हुए उनको भी कई मिलियन वोल्ट्स की इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज कर दिया था, जिससे इस शुमाल मगरबी बहरुल काहिल के मकाम पर बादल घन गरज के साथ चमकने लगे और कई मकामात पर बिजली गिरने से कई सानहात भी पेश आए। रात के अंधेरे में जब ये इजेक्टर क्लाउड शुमाल मगरबी बहरुल काहिल की वादियों के ऊपर पहुंचा तो इस इजेक्टर क्लाउड ने इस मकाम पर मौजूद डायनासोर्स पर अपने अंदर मौजूद गर्म पत्थरों की बारिश कर दी, जिससे ये वादियां जहन्नुम का मंजर पेश करने लगी। अफरा तफरी में दौड़ते भागते उड़ते हुए डायनासोर इन पत्थरों का निशाना बनकर हलाक होने लगे। इन पत्थरों के साथ लगी हुई आग ने इन वादियों में मौजूद जंगलात में भी आग भड़का दी थी, जिससे इन मकामात पर मौजूद पनाह गुज़ीर डायनासोर भी जल कर हलाक होने लगे। चंद लम्हे कबल इस पुरसुकून वादी में अब डायनासोर्स की चीखों पुकार की आवाजें गूंजने लगी थी। उड़ने वाले डायनासोर्स क्वेटज़ुकोअट्लस, जो कि इस पत्थरों की बारिश के दौरान अपने पर जल जाने के सबब उड़ने की सलाहियत से महरूम होकर जमीन पर गिर गए थे, जंगलों में लगी इस आग में जलकर हलाक होने लगे। इस दौरान सब्जी खूर ट्राइसेराटॉप्स डायनासोर्स की एक जोड़ी ने बड़ी मुश्किल के साथ अपना सफर तय करके ज़लज़ले से मुतासरा वादी से फरार हासिल करने में कामयाबी हासिल कर ली थी और वो बहरुल काहिल के एक साहिली मकाम तक पहुंचने में कामयाब हो गए थे। मगर ऐन उसी वक्त इजेक्टर क्लाउड उनके सरों पर आ पहुंचा और उसने इस मकाम पर भी आग और पत्थरों की बारिश शुरू कर दी, जिसकी जद में आकर ट्राइसेराटॉप्स की ये जोड़ी भी हलाक हो गई। इस इजेक्टर क्लाउड की बर्बादी का तूफान थमने में नहीं आ रहा था। इस इजेक्टर क्लाउड ने रफ्ता रफ्ता पूरे ज़मीनी सैयारे को अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया था और पूरे सैयारे पर बादलों से भी ज़्यादा बुलंदी पर इस डस्ट क्लाउड की एक बेहद मोटी तह का एक कंबल की सूरत में ज़मीन के ऊपर बिछा दी थी, जिसकी वजह से ज़मीन पर अब सूरज की रोशनी का पहुंचना बंद हो गया था। सूरज की रोशनी ज़मीन पर ना पहुंचने के सबब पौधों की अफजाइश का अमल भी बंद हो गया था, क्योंकि सूरज की रोशनी की मदद से पौधे फोटोसिंथेसिस के अमल के जरिए अपनी अफजाइश का अमल जारी रखते हैं, जबकि ज़मीन की सतह पर इस डस्ट क्लाउड की हयातियाती तबाही में मज़ीद तेज़ी आती जा रही थी। 32 मिनट कबल तक जो ज़मीन जन्नत नज़ीर वादियों पर मुश्तमिल थी, वो वादियाँ अब जहन्नुम का मंजर पेश करने लगी थी। इस दौरान ज़मीन के मगरबी हिस्सों में मौजूद डायनासोर्स की निस्फ से भी ज़्यादा इकसाम और उनकी नस्लें हलाक होने के बाद मुकम्मल तौर पर मादूम हो चुकी थी। इस इजेक्टर क्लाउड ने ज़मीनी सैयारे को मुकम्मल तौर पर घेर लेने के बाद इंतहाई बुलंदी पर मुस्तकिल डेरे डाल लिए थे।